हाँ भाई, यूट्यूब नजर आ रहा है आप लोगों को? शेयर स्क्रीन की मैंने। अलग करना है, ये बड़ा वाला रेड जो होता है। भाईजान आवाज आ रही है आप सबको? जी जी बेटे, आज काम सेंड करूंगा मैं। अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। हाँ, फुल नहीं आ रही होगी। मैंने इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। अब बताओ, फुल स्क्रीन शो हो रही है? भाई टेस्ट अब जो कमिंग वीक आएगा उसमें होगा। अब हमारी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो उसी में ही होगा। अब ठीक है ना? आप सही रहेगा मेरे ख्याल से, ये सबको देखने में भी आसानी होगी। सब सुकून से देख लेंगे। अगर सब आ गए हो तो मैं वीडियो चला दूं भाई। चले, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुकून से देखिएगा। What's the smallest thing you can think of? Maybe a penny or a button? How about a chip? रेड पे देखा है मैंने। Its height is about half of a centimeter. सर देख चुका हूँ सर मैं। There are 100 भाई centimeters. जिसने देख लिया वो चुप बैठे। Let's go smaller. A grain of salt. This is about 0.3 millimeters. There are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. There are 1 million micrometers in a meter. A virus is about 20 to 300 nanometers. There are 1 billion nanometers in a meter. The diameter of DNA is about 2 nanometers. The size of an atom is only a few angstroms. There are 10 billion angstroms in 1 meter. When you think of an atom, you probably picture something like this. On the outside, you've got electrons that have a negative charge. In the middle is the nucleus. It's made of neutrons which have no charge and protons which have a positive charge. This model's a good starting point, but there are a few things here that don't quite agree with modern science. For one, the size of the nucleus is a lot smaller than this. If I animate it to scale, you wouldn't even be able to see it. The same thing with these electrons. Another thing that's inaccurate is that electrons orbit the nucleus just like a planet orbits a star. Unfortunately, this is still taught in many textbooks, but it's just not correct. Let me cover some background first. Over 2,000 years ago, ancient Greek philosophers had this idea that everything was made of tiny particles. They called these tiny particles atoms. It wasn't until the 1800s that we finally started using science to prove that these atoms really exist. First, we thought atoms looked like this: a positively charged sphere with negatively charged electrons floating around it. Then we learned that this positively charged sphere was actually a lot smaller. We called this the nucleus.
Slowly आ but रहा है, थोड़ा surely, सा we होगा learned that the ब्लर यार, वो nucleus is made up of protons and नेट neutrons. की वजह से। These electrons were tricky. At first, we thought they have to be doing something, so they probably revolve around the देखिए यहाँ पे nucleus इन्होंने like हाइजेनबर्ग this. अनसर्टेनिटी की बात की है, Electrons were then discovered to have different energy levels. We call फिर these बोहर आया था। shells. Shells can only fit a certain amount of electrons. The more electrons, the more shells. It didn't take long before we realized that these shells don't determine how close the electron is to the nucleus. As it turns out, electrons are a lot more unpredictable. So if electrons don't orbit the nucleus, what do they do? Let's start with an idea of an orbit. Here we have the Earth going around the Sun. If the Earth is here today, we can use the laws of physics and gravity to predict exactly where the Earth will be 3 months from now. We know both where the Earth is and where it's going. Now let's go to the size of an atom. With an electron, things are a little different. We can't know exactly where it is and where it's going. We can only know one or the other at any given time. This means it is impossible to really know what the electron is doing. The best we can do is predict where the electron will be found. This area is most commonly known as the electron cloud. However, if we want to be more specific about where to find electrons, देखिए, ये you'll need to orbitals know बन about रहे हैं। orbitals. This is not the same as orbit. Orbitals are specific shapes where electrons live in. देखें ये बने हुए, ये देखें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ये रेड वाला s है, ठीक है, और ये हमारा p जो है वो येलो वाला है, ये डंबल मैंने बताया था, फिर नीचे ब्लू वाला डबल डंबल, ठीक है, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स f ऑर्बिटल ट्रिपल डंबल था। तो देख लें यहाँ पर आप, ये तीन डंबल्स बने हुए, तो ये हमारे शेप्स हैं किसके, spdf के। अच्छा थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, तो ये देखें ये फर्क है, ये जैसे मैं कल आप लोग हो रहे थे ना कि ये ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, तो ये अब यहाँ से देखिएगा कि किस तरीके से To be ऑर्बिट के more अंदर specific ऑर्बिटल्स, about ये where to s, find ये p, electrons, you'll ये need एक to और know p, about फिर ये एक orbitals. और p, तो ये s और p बने सिर्फ, ठीक है, इसका मतलब इसमें d भी आ सकता है, f भी आ सकता है। This is not the same as orbit. Orbitals are specific shapes where electrons live in. If you were in a college chemistry class, you'd be studying about how these orbitals fill up as you get more electrons. ये देखें d आया ये, But I'd like to keep things और आ रहे simple हैं। for this video. So in short, electrons are uncertain. We can't know the path that they travel, only that they'll be found here in the electron cloud. So now you know that even though this is a popular way to represent an atom, it can be misleading. Just to recap what we learned, everything is made of atoms. Atoms are incredibly small. The nucleus is even smaller, and electrons don't orbit the nucleus. Their path is unpredictable. Thanks for watching, everyone. My name is Jared. हाँ भाई कुछ समझ आया, किसी का कोई सवाल? मैंने इसका लिंक ग्रुप पे भी भेजा है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, एक दो बार देखेंगे तो बात बेहतर होगी। आज बच्चे वैसे ही कम है यार, 1 2 3 4 5 10 बच्चे आज, पता नहीं सैटरडे को क्या हो जाता है सबको। अच्छा कल थोड़ा सा क्लास अच्छी नहीं गई थी मेरे हिसाब से, मजा नहीं आया मुझे पढ़ाने में, उसकी वजह ये कि मैंने शायद सही से नहीं पढ़ा पाया इस वजह से, तो मुझे जो है वो मैं मुतमईन नहीं था पढ़ाने से कल ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दोबारा रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा आता हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखी, आपके जहन में थोड़ी सी बात होनी चाहिए भाई कि एक एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, अब वो इलेक्ट्रॉन किधर है, सारा मसला इलेक्ट्रॉन का था। तो हमने पढ़े थे ऑर्बिटल्स, मैंने कहा 4 ऑर्बिटल होते हैं spdf, देखिए s का शेप, p का शेप, d का शेप और f का शेप, ये शेप्स हैं इनके। s का अकेला होता है, p 3 होते हैं, d 5 होते हैं, f 7 होते हैं। मैं अभी इसकी भी बात बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ये शेप्स थे, फिर हमने बात करी इनकी l की वैल्यू की, हमें l की वैल्यू से पता चलता है कि भाई इनका कौन सा ऑर्बिटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ दोनों बातें लिख देता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ भाई मेरी n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, बताओ कौन सा ऑर्बिट होगा और कौन सा ऑर्बिटल होगा। अब मैं यहाँ सारी बात लिख देता हूँ कि भाई l की वैल्यू और ऑर्बिटल l 0 1 2 3, तो s p d और f,
बताओ n3 है तो ऑर्बिट कौन सा होगा, और L1 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? आवाज आ रही है भाई सबको? ऑर्बिट m होगा और ऑर्बिटल s होगा। नहीं मैंने लिखा ना, ऑर्बिट हमारा m होगा, ठीक है, और l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल p होगा। सही है भाई? हाशिर यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है भाई, तो हमने L की वैल्यू से पता करना होता है ऑर्बिटल कौन सा, और M की वैल्यू से पता करना होता है ऑर्बिट कौन सा। ठीक है, तो L की वैल्यू हमें, ये मैंने कल ये बातें लिखी थी सारी, कि दिस क्वांटम नंबर डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे L की वैल्यू से ऑर्बिटल पता चल गया, बताओ शेप क्या होगा? डंबल होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, आपकी आसानी के लिए हम यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं भाई, मैं एक डब्बा बना लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्या, ऑर्बिटल। ठीक है भाई, यहाँ मैं लिख लेता हूँ L की वैल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, शेप। ठीक है, ऑर्बिटल कौन कौन सा है, S, P, D और F। ठीक है, S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2 × 2L+1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, फॉर्मूला क्या था, 2 × 2L+1। तो मैं आप लोगों के सामने L क्या है, L जो है वो हमारे पास है भाई, L हमारे पास पहचान है ना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ना, L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो हमें बताता है ऑर्बिटल के मुतालिक। ठीक है, अभी ऊपर मैंने ये लिखवाई थी बात, ये रही, ये देखो, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और ये हमें बताता है क्या, L की वैल्यू L, और L से हमें क्या पता चलते हैं, ऑर्बिटल। अब आओ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मैं वापस वही कल वाला काम करता हूँ भाई, जो आप लोगों को कल करके दिखा रहा था, 2 × 2 1 = 2 + 1, सॉरी 0 आएगा पहले, 2 0 0, 2 0 0, तो 2 + 1 1, तो जवाब क्या आएगा, 2। ठीक है जी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 10 और यहाँ 14। एस का शेप क्या है, स्फेरिकल। पी का शेप क्या है, डंबल। डी का शेप क्या है, डबल डंबल।
और f का शेप जो है वो हमारा हम क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप याद ही कॉम्प्लेक्स करोगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ही याद करना है आपने, वरना ट्रिपल नंबर होता है, बट कॉम्प्लेक्स याद करना है। अभी आप लोगों ने देख लिया कैसा होता है शेप। अब एक ऑर्बिटल के पास मजीद सब ऑर्बिटल, यानी सब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसके पास मजीद कितनी जगह है कि ये इलेक्ट्रॉन को रखेगा, कितने पार्ट है इसके। ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये बात हमें ऐसे पता चलती है कि भाई एस में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है जी, तो जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ना उनका हाफ कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका क्या कर दो, हाफ कर दो। तो उससे हमें पता चल जाती है ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी स्पेस में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। स्पेस से मुराद क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब जैसे मैं बात करूं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप है, तो इसका मतलब ये हर जगह होगा, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। ठीक है, तो एक ही होगा, एक ही स्फेयर होगा, एक से ज्यादा तो स्फेयर हो नहीं सकते। फिर पी की बात करूं तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब इसका हाफ कर दूं तो 3, यानी पी के स्पेस के अंदर 3 होंगे। पी के स्पेस के अंदर कितने होंगे, 3 होंगे। डी के स्पेस में कितने होंगे, 5 होंगे। और एफ के कितने होंगे, 7 होंगे। हमें ये बात कैसे पता चली, इलेक्ट्रॉन्स का हाफ कर दोगे पता चल जाएगा स्पेस में कितनी ओरिएंटेशन है। और ओरिएंटेशन हमें किससे पता चलती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलती है। ओरिएंटेशन हमें किससे पता चलती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलती है। तो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से सिर्फ क्या पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। दूसरी बात, इसका शेप क्या है, दूसरी बात इसका शेप क्या है। अब स्पेस में इनकी कितनी ओरिएंटेशन है, ये बात हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। तो यहां तक अगर बात क्लियर हो तो मैं थोड़ी आगे की एक बात और समझा दूं। सबको क्लियर है, किसी को भी जरा सा भी डाउट है बता दें। इस टॉपिक में एक बात भी अगर क्लियर नहीं हुई ना, क्या है, ओरिएंटेशन वाला। ओरिएंटेशन तो भी बना के दिखाऊंगा ना मैं, तो वो वहां क्लियर कराऊंगा मैं। इससे पहले की बात का बताऊं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इतने, शेप इतना, एल की वैल्यू, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, अब जरा एक बात और सुनो। अब मैंने कल एक बात ये बताई थी कि कौन से ऑर्बिट के पास कौन से ऑर्बिटल्स होंगे। बात पे जरा गौर करना मेरी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कौन से ऑर्बिट के पास कौन से ऑर्बिटल होंगे। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, सिर्फ 4 ऑर्बिटल ऑर्बिट्स की बात करता हूं, कौन कौन से, के, एल, एम और एन। मुझे बताओ बेटा, एल की वैल्यू याद करनी है। एल की वैल्यू 0 1 2 3 3 है। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1 है तो पी ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 2 है तो डी, एल की वैल्यू 3 है तो एफ। जस्ट लाइक एन की वैल्यू 1 होती है तो के ऑर्बिट। ऐसा ही था ना, फर्स्ट ऑर्बिट क्या था, के, और एन वैल्यू क्या, 1। सेकंड ऑर्बिट क्या था, एल, एन की वैल्यू क्या थी, 2। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, याद कराता हूँ, 1 मिनट रुके, ये आ जाए। इधर देखो, ये देखो बेटा, एन की 1 वैल्यू के, 2 वैल्यू एल, 3 है एम, 4 है एन। ठीक है, इसी तरह 6 है तो पी। जैसे ये थी ना, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह एल की वैल्यू है, अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एस ऑर्बिटल होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी ऑर्बिटल होगा, एन की वैल्यू 2 होगी तो डी ऑर्बिटल होगा, 3 होगी तो एफ ऑर्बिटल होगा।
तो ये L की वैल्यू हमें बताती है किसका, ऑर्बिटल का। यानी अगर मैं आपको L की वैल्यू दे दूंगा तो आपको ऑर्बिटल पहचानना है, या अगर मैं आपको ऑर्बिटल दे दूंगा तो आप L की वैल्यू भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई F ऑर्बिटल है, बताओ इसकी L की वैल्यू क्या होगी। जी जी आज भेजूंगा। बताओ ना, L F के लिए L की वैल्यू क्या होगी, F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो अब आपसे सवाल बेटा वरदा, आप बताओ कि K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। दो आते हैं। L में, L में 8 आते हैं, M में 18 आते हैं और N में 32 आते हैं। ठीक है, अब गौर से सुनना बात को, अभी बिल्कुल इधर ही कंसंट्रेट करना। पुरानी सारी बात कोई नहीं समझ आई, भूल जाओ, अभी इसको देखो। अब K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए। अब जरा देखो, ये देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो K के पास ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए। भाई SPDF बताओ मुझे, S होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, आप लोगों को ये बात आ गई समझ में कि भाई K के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, ओनली S। ठीक है, ये हो गया ऑर्बिट, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अब दोबारा गौर से सुनो। L के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। L के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बताओ L के पास कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं कि टोटल 8 हो जाए। क्या S आएगा, चले भाई S आया, हाँ आ गया S, और P आ गया, तो 2 + 6 कितना हो गया, 8। इसका मतलब L ऑर्बिट के पास S ऑर्बिटल भी होगा और P ऑर्बिटल भी होगा। अब आ जाओ, M के पास कितने आते हैं, 18। आ जाओ भाई, बताओ भाई कितने होंगे, S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, क्योंकि 2 और 6 8, 8 और 10 18। तो इसका मतलब ये है कि M के पास S, P और D तीनों होंगे। अब N क्या है, 32। इसका क्या मतलब है भाई, सब होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सब होंगे, S, P, D और F सारे होंगे। अब आगे समझ में कि K के पास सिर्फ S ऑर्बिटल होगा, L के पास SP दोनों होगा, M के पास SPD तीनों होंगे, N के पास SPDF चारों होंगे, फिर आगे ये चारों होंगे, इससे पीछे वाले ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे और कॉम्प्लिकेशन आती है, इसलिए फर्स्ट ईयर में N तक रखा है कि भाई N ऑर्बिटल तक की बात करनी है हमने। क्लियर है भाई यहां तक बात। यहां तक बात क्लियर हो गई ना। अब O के पास SPDF ही होगा, फिर P के पास भी सिर्फ SPDF होगा, फिर उसके आगे भी SPDF होगा, इससे आगे हो नहीं सकता। F के बाद कोई ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा, यहाँ मामला क्या है, मामला ये कि पहले इलेक्ट्रॉन K में आएंगे फिर L में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली, जरा बात गौर से सुनिएगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास जब K ऑर्बिटल होगा तो एक S K का है। ठीक है, बात गौर से सुनना, एक K का है, फिर L आएगा तो उसमें SP उसका अलग होगा,
फिर डी एम आएगा तो उसका एस पी डी अलग होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं भाई। काउंटिंग में जब जाओगे ना तो आगे काउंटिंग इसी तरह से होती है, ठीक है। आगे की कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी है। जब हम ओ ऑर्बिटल पे आते हैं तो वहां पर होते तो ये तीन ही है, एस पी डी एफ, बट पीछे वाले काउंट होते हुए आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां कॉम्प्लिकेशन में सिर्फ एफ ऑर्बिटल तक आ जाता है, ठीक है। तो आगे भी सिर्फ एस पी डी एफ, एफ पी डी एफ और एस पी डी एफ ही चलता है। तो इसीलिए हम सिर्फ शुरू के चार की बात करते हैं, आगे मसले, आगे अनोमलीज बहुत है। वो अनोमलीज को अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो कभी चैप्टर 3 खत्म नहीं होगा हमारा। तो इसीलिए चार ऑर्बिट्स हैं, के एल एम और एन, ठीक है। 1 2 3 4, नहीं आगे के आते भी नहीं, इवन सेकेंड ईयर में भी नहीं आगे के। और इवन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा भाई, तो यकीन करें यूनिवर्सिटी में भी हमने एफ ऑर्बिटल तक ही कहानी पढ़ी, और एफ ऑर्बिटल तक जब हमने पढ़ी तो इसके आगे हमने और मजीद बातों को देखा भी नहीं। ठीक है जी, तो ये चार बातें हो गई, यहाँ तक मुतमईन है ना भाई। अब आगे आते हैं, अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नहीं भाई कैम्ब्रिज में भी नहीं है, मैं ए लेवल्स को पढ़ाता हूँ, ए लेवल्स में भी सिर्फ डी तक है, एफ नहीं है। A2, इवन A2 में भी नहीं है, A2 भी पढ़ाई मैंने अभी, उसमें भी सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जिन्हें हम। अच्छा जी, अब आगे आते हैं अगले क्वांटम नंबर के ऊपर, और अगला क्वांटम नंबर जो है वो हमारा, वो थर्ड क्वांटम नंबर, वो कहलाता है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एम से। और ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है भाई, ओरिएंटेशन, कि भाई एक ऑर्बिट स्पेस में कहाँ है, एक्स पर है, वाई पर है, या जेड पर है। या क्या हो पता, एक्स वाई पर भी हो सकता है, वाई जेड पर भी हो सकता है, एक्स जेड पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है कहानी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, किसकी, ऑर्बिटल्स की। किसकी बताता है, ऑर्बिटल्स की। तो मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ इसकी, पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वांटम नंबर, डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ठीक है भाई, स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है वो डिस्क्राइब करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज symbolized by small m and its value is minus L to 0 to plus L। ठीक है भाई, चला गया भाई, वो 10 मिनट रह गए, वो आया था, ठीक है। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा, ओरिएंटेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओरिएंटेशन निकालने का फॉर्मूला 2l+1। चले भाई, ऑर्बिटल कौन से हमारे पास, ऑर्बिटल क्या है, एस पी टी और एफ, ठीक है। एल की वैल्यू बताते जाओ भाई, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हमें कैसे पता चलेगी भाई, 2l+1,
ठीक है, ओरिएंटेशन हमें किससे पता चलेगी? 2l+1 से। अब l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 2 0 0 और 0+1 क्या बना? भाई 2 0 0 और +1 क्या बनेगा? 2 1। फिर 2 1 2 +1, 2 × 1 +1 कितना बनेगा? 3। फिर 2 × 2 +1 कितना बनेगा? 5। 2 × 3 +1 कितना बनेगा? 7। एस का एक ही ओरिएंटेशन होगी स्पेस में, पी की 3 होंगी, डी की 5 होंगी, एफ की 7 होंगी। तो याद करें आप लोगों को, अभी मैंने यहाँ पर जो वीडियो देखी हमने अभी, उसमें वीडियो में हाँ बेटा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि फॉर्मूला याद करोगे तो एमसीक्यूज वाली बात क्लियर होगी। मैं एक तस्वीर यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग यहाँ पे देख सकें ऑर्बिटल्स के शेप को और उनकी ओरिएंटेशन को। हाँ भाई देखो, इधर व्हाइट कलर चलेगा तो मैं व्हाइट से दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो भाई ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस की ओरिएंटेशन कितनी थी? एक थी। ये देखो एस की ओरिएंटेशन एक थी तो ये एक ही है। पी की कितनी? 3 है ना, तो ये देखो 1 2 और ये 3। डी की कितनी है? 5, तो 1 2 3 4 5। एफ की कितनी है? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये ओरिएंटेशन है इसकी। अच्छा अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो ड्रॉ कैसे होगी ये बात भी अगर देख लें हम नॉर्मली इन्हें बॉक्स बना के डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम इसको कैसे बना के डिनोट करते हैं? बॉक्स बना के। कोई मुनासिब कलर मिल जाए ना जो ब्लैक पे नजर आए, ये नजर आ जाएगा। हम इसके लिए ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। पी के लिए हम क्या बनाते हैं? ऐसे बॉक्स बनाते हैं और उसमें 3 हिस्से होते हैं। डी के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5। और एफ के लिए हम क्या बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बनाते हैं। रणवीर एफ वाली क्या समझाऊं? देखो एफ का वैसे ही कॉम्प्लेक्स यानी ट्रिपल डंबल है। देखो ना ट्रिपल डंबल बना हुआ है, जरा गौर करो आप। अगर मैं इसे जूम करूं तो ये देखो, ये एक पैटल, ये दूसरा पैटल, ये तीसरा पैटल। और मैंने बनाई थी ये बात, मैंने बना के दिखाई थी ये बात, ट्रिपल डंबल कैसा होता है। ये देखो ये बनाया भाई, ये रहा। फिर क्या समझाऊं? और क्या बात पूछनी है एफ की?
3 मिनट रह गए, जल्दी बता दे यार ताकि मैं बात मुकम्मल कर लूँ। बता दे भाई, बता दे यार। भाई फिजिकल क्लास में पूछना मुझसे, अभी फिजिकल होगी ना, अल्लाह करे बस फिजिकल हो। अच्छा जी, टाइम है नहीं, वैसे भी टाइम है नहीं, यहीं तक छोड़ दूं मैं, यही यहीं से फिजिकल में। एफ, यही तभी तो एफ को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तभी तो बेटा इसमें लिखना भी कुछ नहीं है, इसमें ये बात लिखनी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना। आप लोगों को आज मैं फाइल सेंड करूंगा ना, आप लोग क्या क्या लिखोगे। अच्छा जी, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख ली थी, यहाँ तक ये लिखोगे सिर्फ, ठीक है, ये वाली कहानी लिखोगे। फिर आप आ जाओगे डायरेक्ट क्वांटम नंबर पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेडिंग, क्वांटम नंबर की मेन हेडिंग बनेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद 4-5 लाइन छोड़ देना। ठीक है, फिर ये वाली पूरी कहानी आ जाएगी आपकी। फिर आप आ जाओगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर, इसकी ये वाली कहानी लिखोगे आप, ये वाली बातें लिखोगे, और फिर ये चार्ट बनेगा आपका। फिर आप आ जाओगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो आप ये कहानी तो लिख लोगे, एक बॉक्स छोड़ दोगे इसका, ये वाला। ठीक है, यहां तक लिख लो फिलहाल। ठीक है, बट क्वांटम नंबर के साथ, क्वांटम नंबर जो आप लिखोगे, क्वांटम नंबर के साथ आप यहाँ लाइंस छोड़ोगे। ठीक है, तकरीबन 5 to 6 लाइंस आप यहाँ छोड़ोगे, ताकि मैं डेफिनेशन लिखवा दूँ आपको इसकी। बाकी मैं अभी बात को यहीं छोड़ रहा हूँ, इस बात को मैं आगे अपनी जो ऑन फिजिकल होगी उसी में कंटिन्यू करूंगा। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कल भी मुझे मना किया एक्स्ट्रा क्लास लेने को, इसलिए तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही हमारी अब जो होगी वो कंटिन्यू होगी, और उसी के बाद हम अपना शेड्यूल डिसाइड करेंगे। एक बात, दूसरी बात, आज एक रिपोर्ट आई भाई, वो आप न्यूज़ सुन ले, शायद आपके लिए अच्छी हो शायद नहीं। पेपर पैटर्न के हिसाब से होंगे, कोई एमसीक्यूज बेस्ड नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात, टेस्ट था आप लोगों का जो अगले हफ्ते होगा वो किसी भी दिन हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, सॉरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, तो यहीं तक मैं रख रहा हूँ इसको, फिर इसी के आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन, जिस दिन फिजिकल होगी ना उस दिन इन तीनों बातों को रिपीट करके फिर मैं आगे बढ़ूं, ताकि सबके मसले हल हों। ऐसे मैं नहीं भगाता हुआ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा भाई, अगर किसी को नहीं समझ आया कोई मसला नहीं है, हम अगली क्लास, मैं क्वांटम नंबर प्रिंसिपल से ही शुरू करूंगा, वहां से लेता हुआ आपको स्टेप वाइज यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, और टेस्ट की तैयारी रखिएगा चैप्टर 2 की। यहाँ एंड कर रहा हूँ भाई मैं क्लास, ठीक है, खुद ही खत्म हो जाएगी 1 आध मिनट में।